Hello friends, Kalro School Halol presenting this video for standard 9th English medium subject English. Friends, today we are going to discuss about a lesson packing from the book Beehive. About this lesson we already discussed in our previous video number 1 that we already completed. So those who hadn't seen that video, firstly go and watch that video so that you will get the idea about the lesson. In this lesson we seen that there are two friends. They were doing the packing. Okay, writer himself and his two friends George and Harris, they all thought that they were very good in the packing, but in fact all the three are very bad in the packing. Okay, they do the lot of the scattered thing. ओके, इतना ख़राब वो पैकिंग करा कि जिसकी वजह से एक हिलेरियस सिचुएशन वर क्रिएटेड. राइटर पैक्ड हिज टूथब्रश. Okay, and after he was forgetting whether he had put it down into the bag or not. After some time he will find out that toothbrush from his boot only. Okay, and many of the things he was doing very wrongly. George and Harris thought they were better than the writer into the matter of the packing, and if they tried to do the packing in at that time, which kind of the thing they were doing, the all things we were discussed in our previous video. Now let's see what will be happen ahead. And then it was George's turn. Now the turn of the George will come for the packing, and he trod on the butter. Trod means to step down. उसके ऊपर खड़ा रह गया. किसके ऊपर? बटर के ऊपर. I don't say anything. Writer didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. And after some time, writer डिडंट टेल एनीथिंग. ओके, एंड वो क्या उन्होंने क्या किया, टेबल के कॉर्नर पे आकर वो बैठ गए. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट जॉर्ज ने किस तरीके से बटर के ऊपर पैर रख दिया और राइटर जो है वो टेबल पर बैठकर उनकी सिचुएशन को एंजॉय कर रहे थे. ओके, जॉर्ज टॉड ऑन द बटर. यू कैन सी द पिक्चर. ओके, नेक्स्ट. It irritated them more than anything I could have said. Writer seated on the table and observing him and just smiling on both of them. This kind of the act made angry both of them, George and Harris, but they couldn't say anything. Okay, I felt that, writer felt that it made them nervous and excited. This kind of the situation made both George and Harris nervous and excited, and they stepped on the things. And after getting the nervousness, they both were stepped on the things important for the packing, and put the things behind them, and then couldn't find them when they wanted them. उन्होंने क्या किया कि पैर रख देते थे, चीज़ यहाँ वहाँ रख देते थे. उनको जब पैक करना होता था तो वो चीज़ मिल नहीं रही थी. बहुत सारी कंफ्यूजिंग सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो रही थी. एंड दे पैक द पाइल्स पीस एट द बॉटम. और जो वहाँ पे उन्होंने एक डिश जो थी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन वो एकदम नाजुक थी, वो उन्होंने अंदर रख दी. और उसके ऊपर उन्होंने हैवी थिंग्स रख दिया, हैवी थिंग्स एट अ टॉप. तो वो क्या हो गई? स्मैश्ड इनटू द पीस इन. और डिश जो थी, मतलब वो कांच की थी, तो वो टूटकर एकदम खराब हो गई. दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग. ओके, उन्होंने क्या कर दिया, सॉल्ट जो था वो यहाँ वहाँ बिखेर दिया, नीचे गिरा दिया. एंड एज फॉर द बटर, आई नेवर शो टू मैन डू मोर विथ 1 and 2 pans worth of a butter in my whole life than they did. Writer told here that they both were अपसेट हो गए, और उन्होंने सॉल्ट जो था वो भी यहाँ वहाँ गिरा दिया. और एज़ फॉर द बटर के लिए, आई नेवर शो टू मैन, मैंने कभी भी ज़िंदगी में दो इंसान नहीं देखे, डू मोर विथ 1 and 2 pans, बराबर दोनों जो है वो
पैन लेकर, पैन मतलब तवा लेकर वो बटर के ऊपर खड़े रह गए थे। मेरी लाइफ में ऐसा फनी जो सीन था वो मैंने नहीं देखा। राइटर टोल्ड दैट आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ इट्स स्लीप हिज स्लीपर। राइटर जो है वो बता रहे हैं कि जो दोनों बटर ढूंढ रहे थे, जॉर्ज ने उसको ढूंढ लिया। कहाँ से? ऑफ हिज स्लीपर। दे ट्राइड टू पुट it into the kitli, it wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They did scraped it on the at last and put it down on a chair and Harris sat on it. और बाद में उन्होंने उसको क्या कर दिया? किटली में रखने की, ज़बरदस्ती किटली में घुसाने की कोशिश की, लेकिन वो जा नहीं रहा था। फाइनली उन्होंने जब चला गया तो उसको निकालने की कोशिश की लास्ट में, और फिर उसको चेयर में रख दिया। और हैरिस को ये पता नहीं था कि वो उस चेयर में रखा हुआ है, तो वो उसके ऊपर बैठ गया। एंड इट स्टक्ड टू हिम, और वो जैसे ही बैठ गया तो उसके पीछे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और उनको पता ही नहीं था कि वो हैरिस के पीछे चिपक गया है, और वो पूरे रूम में उसको ढूंढते रहे कि ये कहाँ गया कहाँ गया। ओके, आई विल टेक माई ऑथ आई पुट डाउन ऑन द चेयर। लेकिन राइटर है कसम खा के बैठे थे और वो आराम से चेयर के अंदर बैठे। सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। ओके, I show you do it myself not a minute ago said Harris। हैरिस ने कहा कि अभी 1 मिनट पहले तो मैंने देखा था। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने 1 ही मिनट पहले उसको देखा था, वो अभी कहाँ गया? Then they stared round and round room again looking for it. After that they both were stared entire the room and looking for it, and then they get again in a center and stared at one another। और फिर वो दोनों रूम के सेंटर में आ जाते हैं और एक दूसरे को घूर के देखने लगते हैं। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हियर्ड ऑफ सेड जॉर्ज। जॉर्ज कहता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हो गई है, मैंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि 1 मिनट पहले मैंने कोई चीज़ देखी वो विदिन अ सेकेंड गायब हो गई, लेकिन वो पता है वो हैरिस के पीछे चिपक गई थी। सो मिस्ट्रियस सेड हैरिस। हैरिस कहता है कि कितना मिस्ट्रियस है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट अ बैक ऑफ हैरिस एंड शो, एंड आफ्टर दैट जॉर्ज सडनली गॉट राउंड ऑफ द हैरिस एंड ही शो that it was sticked on the back of the Harris. Why? Here it is all the time, he exclaimed the individuality। ओके, और वो एकदम नर्वस होके वो एकदम से नर्वस से होके वो कहता है कि ये तो यहाँ पे है बराबर। इंडिजेनली का मतलब होता है एकदम चौंक के कोई भी चीज़ को बोलना, ठीक है। तो वो ज़ोर से चौंक गया और उसने कहा कि ये तो यहीं पे है, ये हम लोग कब से यहाँ वहाँ रूम में ढूंढ रहे थे, बट इट इज़ स्टिल हियर। वेयर सेड क्राइड हैरिस। हैरिस चिल्ला के कहता कहाँ है? स्पिनिंग राउंड, वो पीछे घूम रहा था। स्टैंड स्टिल, वो कहता है कि खड़ा रहे सीधा है। कांट यू रॉड जॉर्ज। जॉर्ज गुस्सा होके बोला फ्लाइंग आफ्टर हिम, और वो फटाफट उसकी तरफ गया। एंड दे गॉट इट ऑफ, और उन्होंने वहाँ से निकाला और पैक्ड इट इनटू द टी पॉट, और टी पॉट में उसको वापस से पैक कर दिया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, और इन सब के बीच में एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है जो होता है एक कुत्ता, डॉग, ठीक है। उसका नाम क्या होता है? मॉन्टमोरेंसी। Of course, the Montmorency's ambition in the life is to get in the way and be shown at if he can scream in anywhere where he particularly is not wanted. Be shown at means here get scolded. तो Montmorency was there, okay, and Montmorency का एक ambition लाइफ में था कि जब भी, और उसने एक कसम खाई हुई थी कि जब भी कुछ अच्छा कोई कर रहा होगा तो वहाँ जाके वो यहाँ वहाँ चीज़ें जो है वो बिखेर देगा। ओके, और वो इसका यही काम था। एंड बी परफेक्ट द न्यूशंस, और उसका काम क्या था? न्यूशंस फैलाना, बिना कोई काम के वहाँ पे अड़चने खड़ी कर रहा। एंड मेक पीपल मैड, एंड ही मेड द पीपल मैड। एंड हैव
थिंग्स थ्रो एट हीज हेड, उसको अच्छा लगता था कि वो चीज़ें जो उछालता था और अपने सिर के ऊपर वो गिरती थी। देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तो ऐसी जो हरकतें करने के बाद उसको लगता था कि उसका डे जो है वो वेस्ट नहीं हुआ। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट मॉन्टेमोरिस किस तरीके से जो सामान है उसको बिखेर रहा है या वहाँ फेंक रहा है, और जो हैरिस है वो उसको पैन लेके खड़ा है। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and then he has succeeded in accomplishing this. His concrete becomes quite unbreathable. Concealed means here his pride in himself. तो here given the characteristic about the dog, okay, Montgomery's to, तो वो क्या करता था, to get somebody staple, ठीक है, तो वो कहीं भी घुस जाता था और किसी भी काम में वो जो था वो अपनी टांग अड़ाता था, और उसका ये हाईएस्ट ऑब्जेक्ट था कि भाई कोई भी ऐसे करने में उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था और वो अपने आप के ऊपर प्राउड फील करता था। He came and sat down on the things. So this kind of the nature that Montmorris has. So he came on the place where the writer and his friends were packing and he sat down on the things, वो चीज़ों के ऊपर बैठ गया। Just when they were wanted to be packed, जब भी वो उसको पैक करने जाते थे, at the same time he came and sit on that things, and he labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out their hand for anything, it was his cold hump nose and that they wanted. जब भी हैरिस और जॉर्ज जो थे वो पैक करने के लिए कोई चीज़ लेने जाते थे तो अचानक से उनको कोल्ड डंप लगता था, एकदम उनका जो कुत्ते का नोज़ था वो उनके हाथ में आ जाता था, क्योंकि जो जहाँ पे भी सामान पड़ा हुआ होता था वहाँ पे वो कुत्ता जाके बैठ जाता था। One minute. Okay, he put his leg into the jam. Now after that the dog put his leg into the jam and he worried mean disturb, यहाँ पे he worried the teaspoon, और उसने टीस्पून को भी डिस्टर्ब कर दिया, मतलब निकाल दिया। and he pretended that the lemons were the rats, और वो उसको लगा कि रेमन जो वहाँ पे लेमन पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको वो रैट मतलब के चूहे समझकर उनके पीछे उनके साथ खेलने लगा, उनके पीछे भागने लगा। एंड गेट इन टू द हैम्पर एंड किल्ड, ओके, और वो उनके ढेर के ऊपर जाकर बैठ गया और उसको ऐसा फील करने लगा कि वो चूहों को मार रहा है। इस तरीके से वो लेमन्स के ऊपर जाकर बैठ जाता है। Three of them before Harris could land him with the flying pan, बराबर है, तो वो वहाँ से फटाफट निकल गया। जो हैरिस है वो गुस्से में फ्राइंग पैन लेकर उसको मारने की तरफ बढ़ रहा था। हैरिस सेड, I encouraged him, I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural original sin that is born in him that makes him do the things like that. Here Harris gave his opinion that he didn't encourage the dog to do this kind of the mischievous thing with them, okay. The dog himself, in his natural habituality, that he made the people disturb all the time, because by born this kind of the nature the dog has. So this is the thinking about the George towards the dog. The packing was done at 12:50, 12:50 को पैकिंग डन हो गया। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, हैरिस जो है वो सब सामान पैक करके ढेर लगा के उसके ऊपर बैठ गया। एंड सेड,
होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। ओके, और बोला कि होप उम्मीद है कि अब कुछ टूटेगा नहीं। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। टूटेगा तो टूटेगा, कोई बात नहीं। विच रिफ्लैक्शन सीम्स टू बी कम्फर्ट हिम। जो वो दिख रहा था कि वो एकदम कंफर्ट फील कर रहा था। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर अ बेड। और उसने कहा कि वो अब सोने जाएगा। वी वर ऑल रेडी फॉर अ बेड। हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट एंड वी वेंट टू अपस्टीयर। हैरिस भी उनके साथ सोने आने वाला था, और वो सब अपस्टीयर मतलब ऊपर के रूम में सोने के लिए चले गए। वी टॉस फॉर अ बेड। हम लोगों ने बेड के लिए, क्योंकि पर्सन 3 थे और बेड एक ही था, मतलब 2 कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 जन सो सकते थे, इसलिए उन्होंने टॉस किया कि कौन बेड के ऊपर सोएगा और कौन बेड के नीचे सोएगा। एंड हैरिस हैड स्लीप्ड विथ मी ही सेड। हैरिस टॉस जीता और वो मेरे साथ सोएगा। डू यू प्रीफर द इनसाइड फॉर और आउटसाइड जे। ही आस्क्ड दैट कि भाई तुम डू यू प्रीफर टू इनसाइड और आउटसाइड, मतलब कि बेड के इनसाइड सोओगे या आउटसाइड सोओगे, उसने मुझे पूछा। तो मैंने कहा आई सेड जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड इन अ बेड। तो मैं जनरली बेड के अंदर साइड सोना प्रीफर करता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। मुझे थोड़ा अजीब लगा। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई हैव टू आई वॉक यू फेलो। जॉर्ज यहाँ पे हमको बताता है कि तुम लोगों को मैं कितने बजे उठाऊँ। तो हैरिस सेड 7 बजे उठा देना, ठीक है। आई सेड नो 6। मैंने कहा नहीं 6 बजे उठा देना। आई वॉन्ट टू राइट सम लेटर्स। मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं, 6 बजे उठा देना। तो हैरिस एंड आई हैड बीट अ रॉ ओवर इट। और हम दोनों के बीच में थोड़ी बहस छिड़ गई कि भाई नहीं, वो बोल रहा था कि 7 बजे, मैं बोल रहा था 6 बजे। बट एट लास्ट स्पिल्ड द डिफरेंस एंड सेड 6:30। और दोनों के बीच का झगड़ा जो है वो एंड हो गया। स्पिल्ट ऑफ अ डिफरेंस मीन्स दिस मीन्स दैट दे एग्रीड ऑन 6:30 बिकॉज इट वॉज हाफ वे बिटवीन 6 and 7। 6 और 7 के बीच का टाइम उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि भाई ना 6 बजे उठेंगे ना 7 बजे उठेंगे, 6:30 बजे सही है। तो उन्होंने कहा उसको कि वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। जॉर्ज हमको 6:30 बजे उठा देना। दोनों ने फाइनल डिसीजन लिया। लेकिन जब वो जॉर्ज की तरफ देखते हैं, जॉर्ज मेड नो आंसर। जॉर्ज कोई जवाब नहीं दे रहा था। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम। और बाद में हमको पता चला कि हमारा जब डिस्कशन चल रहा था कि कितने बजे उठना है, उससे पहले तो वो सो चुका था। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू ऑन गेटिंग आउट इनटू द मॉर्निंग। तो हमने एक बाथ टब ला के उसके सामने रख दिया जहाँ पे वो सो रहा था, ताकि जब वो सुबह उठे तो सीधा उसके अंदर गिर जाए और एक फ़नी मोमेंट फिर से क्रिएट हो। एंड वेंट टू बेड आवर सेल्फ। और फिर हम दोनों जो सोने के लिए चले गए। सो दिस इज़ द स्टोरी। ओके, जेरोम ने ये स्टोरी लिखी है। और ये 3 मैन इन द बोट, ये एक फ़नी एंड हिलेरियस थिंग थी इन विच राइटर और उनके फ्रेंड्स किस तरीके से पैकिंग के लिए कंफ्यूज थे और किस तरीके से ख़राब सिचुएशन में पैकिंग करते और कुत्ता आके कैसे डिस्टर्ब करता है। एवरीथिंग वी विल डिस्क्राइब इन दिस लेसन। This is very funny lesson. I hope you guys will get the idea about the lesson related to this video. Whatever the question answer are there, that I will send you to the PDF that you have to write down in your notebook. Tomorrow there will be a test of this chapter, so be ready for the test. And in our next video we will discuss about the next chapter. Bye. Take